ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮਸ ਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਿੰਪਲ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਓਮਸ ਲਾ ਔਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਔਰ ਪੈਰਲਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫਿਗਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਟ। ਇਸ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਟ। ਤੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3.8 ਓਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 2 ਓਮ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 3 ਓਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਏ ਐਂਡ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਏ ਅਤੇ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਏ ਐਂਡ ਬੀ। ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਦਾ ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਔਰ ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰੰਟ ਇਨ 3 ਓਮ ਬ੍ਰਾਂਚ। 3 ਓਮ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ। ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੀਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਟ ਹੈ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਏ ਔਰ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੀ ਐਂਡ ਸੀ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਬੀ ਐਂਡ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੀ ਐਂਡ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੋ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੋ ਪੈਰਲਲ ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 1/RT ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ R1 1/R1 ਪਲੱਸ 1/R2। ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਆ R1 1/R1 ਪਲੱਸ 1/R2। ਤੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ R1 ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ R2 ਕਹਿ ਲਓ। ਤੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ 1/2 ਅਤੇ 1/3 ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ 6। ਔਰ ਜਦੋਂ ਐਲਸੀਐਮ 6 ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਐਲਸੀਐਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 3, ਉੱਪਰ 1 ਹੈ ਅਤੇ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸੇਮ ਹੀ 3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 6 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 2, ਔਰ 2 ਉੱਪਰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5/6। ਤੋ ਇਹਦਾ ਮੀਨਸ ਹੈ ਕਿ 1/R ਜੋ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ 5/6। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ R ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 5R = 6। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ R ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ 6/5 ਓਮ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ A ਔਰ C ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਟ ਸੀ, ਇਹ ਸਰਕਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 3.8 A ਅਤੇ B ਦੀ, ਔਰ B ਅਤੇ C ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ 6/5। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.8 ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗੀ AC ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ 3.8 ਦਾ ਡੈਸੀਮਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ 10 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਲੱਸ 6/5 ਇਸ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 10। ਤੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ 10 ਐਲਸੀਐਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 1 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਪਰ 38 ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 2, ਔਰ 2 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 12। ਔਰ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ 38 ਪਲੱਸ 12, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 50, ਅਤੇ 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ A to C ਉਹ ਆ ਗਈ ਜੀ 5 ਓਮ
ਰजिस्टेंस। हुण असी पोटेंशियल डिफरेंस कढ़ना है बी ते सी का। तो पोटेंशियल डिफरेंस कढ़न तो पहला असी की कर सकते हैं करंट। हुण जो साडे कोल टोटल रजिस्टेंस आ गई है तो असी टोटल करंट कैलकुलेट करांगे। तो करंट ओम्स ला दे फार्मूले दे नाल जो करंट है साडे को आ जाएगा वोल्टेज बाई रजिस्टेंस। तो वोल्टेज इस डायग्राम के 12 वोल्ट देती है और करंट असी हुण कैलकुलेट किया 5 ओम है। तो टोटल करंट इस सर्किट दे विच आ गया 2.4 ए। तो ये जो सर्किट है इस दे विच जो टोटल करंट है आई है वो कितना आ गया जी 2.4 ए। हुण असी कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस करना है तो ए और बी दे विच जो असी पोटेंशियल डिफरेंस करांगे ए एंड बी पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज ड्रॉप जो असी कैलकुलेट करांगे तो वोल्टेज ड्रॉप तुहानूं पता है कि जो फार्मूला वोल्टेज ड्रॉप का किस इक्वल हो गया बी इंटू आई इंटू आर। वोल्टेज किस इक्वल आ गई अकॉर्डिंग टू ओम्स ला आई इंटू आर। तो आई की वैल्यू असी कैलकुलेट की है 2.4 और रजिस्टेंस जी है वो है जी 3.8। तो टोटल इसकी जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना आ गया 9.2 वोल्ट। हुण असी वोल्टेज ड्रॉप कढ़ांगे बी ते सी का। तो टोटल वोल्टेज सानूं पता चल गई है 9.2 वोल्ट है। तो जो वोल्टेज साडे को आ गई जो ए और बी के क्रॉस जो वोल्टेज है वो आ गई 9.2 वोल्ट। टोटल वोल्टेज सानूं पता है 12 वोल्ट है। जो असी इहदा डिफरेंस करांगे चो माइनस करांगे साडे को बी ते सी के क्रॉस वोल्टेज आ गई। वो वोल्टेज आ जाएगी जो असी माइनस करांगे 2.88। तो इसदा मतलब है कि ये जी वोल्टेज है इस दे अक्रॉस जी वोल्टेज है यह साडे को आ गई 9.2। तो इस दे क्रॉस जो वोल्टेज आ गई है बी ते सी दे ये आ गई 2.88। तो ये वोल्टेज आ गई 9.2 वोल्ट ते 2.88 वोल्ट। हुण असी करंट कैलकुलेट करना तो करंट करना असी जिस दे विच 3 ओम रजिस्टेंस जी साडे को रजिस्टेंस पैरेलल दे विच है उहदे विच जो 3 ओम रजिस्टेंस है एक बारी मैं फिर डायग्राम दस दिना। ये जो डायग्राम है इस दे विच जो रजिस्टेंस हैगी है 3 ओम इस दे विच असी करंट कैलकुलेट करना कि कितना करंट इस दे विच फ्लो हो रहा। तो ये देख सकते हो तुसीं स्क्रीन दे जो असी करंट निकालना तो अकॉर्डिंग टू ओम्स ला करंट किस दे इक्वल आ जाएगा वोल्टेज बटा रजिस्टेंस। तो जो वोल्टेज साडे को आ गई जी 2.88 तो रजिस्टेंस आ गई साडे को 3 तो एक करंट आ जाएगा 0.96 अंपीयर 0.96 अंपीयर। तो ये एक छोटा या न्यूमेरिकल ही जो काफ़ी इंपोर्टेंट है। इस दे नाल ही एक न्यूमेरिकल असीं होर सॉल्व करते हैं जिस दे विच फाइंड आउट द टोटल रजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इस सर्किट विच तुसीं एक ते टोटल रजिस्टेंस कढ़नी है उस तो बाद फाइंड आलसो द टोटल करंट भी कढ़ना है तो करंट इन ईच ब्रांच जिन्नियां भी इस दे विच ब्रांच होएगी हर एक ब्रांच दे विच तुसीं करंट कैलकुलेट करना है। तो ये तुसीं डायग्राम देख सकते हो जिस दे विच एक रजिस्टेंस है जिन्हों असीं कह दिंदे कि R1 रजिस्टेंस है साडे कोल 5 ओम की, R2 रजिस्टेंस है 4 ओम की, R3 रजिस्टेंस हैगी है जी 6 ओम की। एक तो असीं इसकी टोटल रजिस्टेंस निकालनी है, एक असीं निकालना है जी टोटल करंट निकालना है और एक असीं निकालना है जिहड़ी ईच ब्रांच है I1 I2 तो I3 इहदा असीं करंट कैलकुलेट करना है। तो सब तो पहला सेम ही जिस तरह असीं पहला न्यूमेरिकल किया है सब तो पहला जिहड़ा पैरेलल साडे कोल पार्ट है बी एंड सी तो पैरेलल वाली रजिस्टेंस नूं असीं कैलकुलेट करते हैं। तो पैरेलल वाली रजिस्टेंस आ गई साडे कोल 1/4 ते 1/6 जदों इसका असीं 6 4 और 6 का लघुत्तम लवांगे LCM ये आ जाना साडे कोल जी 12 और जिहड़ा साडे कोल लघुत्तम आंदा है LCM 12 आ गया उन्होंने असीं करांगे 4 दे नाल डिवाइड तो कितना आ गया 3 4 तीए 12 इत्थे आ जाएगा साडे कोल जी 3 आ जाएगा। उस तो बाद जो असीं 12 नूं 6 नाल डिवाइड करांगे इत्थे कितना आ जाना जी 2 टोटल कितना आना साडे कोल 5/12
12। तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵੈਲਿਊ, R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12/5। तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ A ਦੇ C ਦੀ, तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਜੀ 5 ਓਮ, ਇੱਕ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ 12/5। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਲਘੁੱਤਮ ਜੋ ਹੈ 5 ਆ ਗਿਆ, ਔਰ 5 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ तो 5 आ जाएगा, 5 गुना 5 मल्टीप्लाई करके 25 आ जाएगा। फिर जो लघुत्तम आया 5 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 12 ਦਾ 12 आ गया। ये साढ़े को आ गया जी 37/5। और जो इनू असी तकसीम करांगे तो साढ़े को आ जाएगा 7.4 ओम। टोटल जो इस सर्किट जो रजिस्टेंस है वो आ गई जी 7.4 ओम। जो साढ़े को टोटल रजिस्टेंस पता चल गई है तो टोटल वोल्टेज इस सर्किट के सानू दिती दी है 20 वोल्ट। तो असी टोटल जो करंट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी के नाल। जो असी करंट कैलकुलेट करांगे तो ये इस तरह तुसी कैलकुलेट कर सकते हो, वोल्टेज बाई रजिस्टेंस। वोल्टेज कितनी है 20 वोल्ट है, रजिस्टेंस है 7.4। और जो तुसी 20 ਨੂੰ 7.4 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड करोगे तो ਤੁਹਾਡਾ आंसर आया नहीं 2.70 अंपीयर। ये आ गया टोटल करंट। हुण असी ईच ब्रांच दे विच करंट कैलकुलेट करना है। और वोल्टेज ड्रॉप पहला असी कैलकुलेट कर लेना कि इस दे विच वोल्टेज ड्रॉप है, दो सर्किट है, एक सीरीज़ वाला है तो एक पैरेलल वाला, ठीक है जी। तो ये तुसी एक बारी डायग्राम फिर देख लो। ये जो सर्किट है इस दे अक्रॉस जो वोल्टेज है उन्होंने असी कह दें B1, और इस दे क्रॉस जो वोल्टेज है वो B2। तो असी दोनों के क्रॉस जो है पहला वोल्टेज कैलकुलेट करांगे। तो जो असी वोल्टेज कैलकुलेट करोगे A to B तो इस दे विच रजिस्टेंस कितनी है 5 ओम दी है। करंट असी कैलकुलेट कर चुके हैं तो ये आ गया साढ़े को 13.50 वोल्ट। और B तो C के क्रॉस जो असी वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना है तो टोटल साढ़े को 20 है। 20 विचों असी 13.50 माइनस करांगे, साढ़े को आ जाएगा 6.50 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा B तो C दे, जिन्हें तुसी V2 कह सकते हो। हुण असी ईच ब्रांच का करंट कैलकुलेट करना है। तो जो तुसी करंट कैलकुलेट करोगे तो करंट I1 कैलकुलेट करोगे। रजिस्टेंस कितनी है जी, रजिस्टेंस साढ़े को 5 ओम। इस दे विच वोल्टेज V1 और रजिस्टेंस किहड़ी आ गई जी R1 5 ओम है। इनू 13.50 जो असी 5 नाल तकसीम करांगे साढ़े को आंसर आ जाएगा जी 2.7 अंपीयर। उस तो बाद करंट असी कढ़ना है 4 ओम रजिस्टेंस विच, और ब्रांच करंट बन गया जी I2। इसकी वोल्टेज जो असी करंट कैलकुलेट करना V2/R2 ये आ जाएगा 6.50 डिवाइड करांगे 4 दे नाल, ये कितना आ गया जी 1.62 अंपीयर। तो सिमिलरली जो नैक्सट जो रजिस्टेंस है वो है साढ़े को जी 6 ओम दी। तो जो असी I3 ब्रांच का करंट कैलकुलेट करांगे तो आ जाएगा वोल्टेज I2 है और रजिस्टेंस जो है R3 है। इसका मतलब 6.50 जो असी 6 नाल तकसीम करांगे साढ़े को आंसर आ जाएगा जी 1.608। तो इस तरह असी यह जो है टोटल करंट, ब्रांच करंट और टोटल रजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर तुहानू वीडियो अच्छी लगी वीडियो नू लाइक और शेयर जरूर करना। तो नैक्सट अगली वीडियो में फिर मिलांगे। धन्यवाद, जय हिंद।